we must clearly tell the people in Pakistan and the government of Pakistan that this is only a multilateral meeting and there will be no bilateral discussions between India and Pakistan. जहां तक बात रही पाकिस्तान की और हमारे रिश्तों की, वो तो एक अलग हम कह सकते हैं एक अलग ट्रैजेक्टरी पर है, बहुत क्लियर कट है कि उसमें जब तक पाकिस्तान अपनी प्रोपेगेंडा और अपनी ग्राउंड की टेरर सपोर्ट नहीं कम करता तब तक हमारी रूटीन रिलेशन नहीं हो सकते। पाकिस्तान के चलते अपना रोल क्यों एससीओ से रिड्यूस करें? तो वी हैव टू प्ले अ रोल, वी आर प्लेइंग अ रोल, जो भी हमें दिखता है विद द एससीओ। पाकिस्तान उसमें है या नहीं है, हमें उस चीज को साइडलाइन करके देखना है। चाइना भी इस मीटिंग को बड़े ध्यान से देखेगा कि क्या डेवलपमेंट होती है। The meeting taking place in Islamabad is the annual meeting of SCO heads of government. So the Prime Ministers of Russia, the Prime Minister of China, the Prime Minister of Kazakhstan and other countries will be there. But our Prime Minister attends the Heads of State meeting, summit. So at this meeting, normally in the past also the External Affairs Minister has been attending. And this time also the government has taken the right decision that SCO is very important for India. So the External Affairs Minister of India, Dr. Jaishankar, will lead the delegation. However, we must clearly tell the people in Pakistan and the government of Pakistan that this is only a multilateral meeting and there will be no bilateral discussions between India and Pakistan. I think it is very important to convey this message to the Pakistani authorities. So, is there any like Pakistan may take it either way with the head of? No, since Pakistan is hosting this meeting, they will be happy that India is also attending it at the level that we normally attend this meeting, which is at the External Affairs Minister's level or ministerial level, let me say. In the past also, India has been represented at this meeting by our former External Affairs Minister, Sushma Ji, by other ministers who have also attended it. This time, our External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, will be attending it as the leader of the Indian delegation. So there's nothing, are you trying to say there's nothing can impact the relation? No, I think India-Pakistan things which happen? No, I think what will happen is that Pakistan will be happy that when they are hosting this meeting, that India has also attended it. So I think they will be quite happy with that. But we should clearly convey to Pakistan that there is no bilateral discussions which will be held when our minister goes there. शंकर जी जाएंगे पाकिस्तान, एससीओ समिट को अटेंड करेंगे इस्लामाबाद में जो हो रही है, क्या उम्मीदें लगा के बैठे? क्योंकि यूएनजीए में जिस तरीके से रुख रहा जयशंकर जी का, अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस मूव के बारे में आपको क्या? आई थिंक वहां से हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही हुआ, क्लासिक जयशंकर। सो इंडिया विल स्पीक क्लियरली अपने व्यू को। जहां तक रही बात जाने की, देखिए ऑन द वन हैंड ये है हेड्स ऑफ द स्टेट की मीट, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे, तो वी ऑलरेडी डाउनग्रेडेड दैट। ओके, सो द एफएम इज गोइंग विच इज क्वाइट समथिंग ऑफ कोर्स, बट हमने उसको वो पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए हमने उसको वो अकॉर्डेंस नहीं दिया। सेकेंडली, एससीओ इज अ यूजफुल इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। हम पाकिस्तान के चलते अपना रोल क्यों एससीओ से रिड्यूस करें? तो वी हैव टू प्ले अ रोल, वी आर प्लेइंग अ रोल, जो भी हमें दिखता है विद द एससीओ। पाकिस्तान उसमें है या नहीं है, हमें उस चीज को साइडलाइन करके देखना है, क्योंकि जो हमारे इंटरेस्ट हैं इन द एससीओ कॉन्टेक्स्ट, इन द लार्जर रीजनल कॉन्टेक्स्ट, मल्टीपल जो इश्यूज हैं, दे वेरी लार्ज इंटरेस्ट। जहां तक बात रही पाकिस्तान की और हमारे रिश्तों की, वो तो एक अलग हम कह सकते हैं एक अलग ट्रैजेक्टरी पर है, बहुत क्लियर कट है कि उसमें जब तक पाकिस्तान अपनी प्रोपेगेंडा और अपनी ग्राउंड की टेरर सपोर्ट नहीं कम करता तब तक हमारी रूटीन रिलेशन नहीं हो सकते। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि एससीओ एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें हमें अपनी डेफिनेटली अपनी आवाज रखनी है, अपने पॉइंट रखने हैं, और पाकिस्तान को लेकर के भी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी करेक्ट एंड वेरी बहुत मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट डिसीजन है भारत का कि हम ये भी कर सकते हैं कि कोई ना जाए, ये भी हो सकता था राइट कहने में, बट डेफिनेटली यस, हम एक सिंसियर सीरियस पार्टिसिपेशन है, बट नॉट एट द लेवल ऑफ द हेड्स। पाकिस्तान अभी पाकिस्तान में है, और जब पूछा गया एनईए से, उन्होंने ये रिस्पांस दिया है कि
पाकिस्तान में उनका वेलकम होना कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि वो इंडिया के फ्यूजिटिव हैं और डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा कंडेमनेबल है, बट सरप्राइजिंग नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया की डिमांड रही है जाकिर नाइक के एक्स्ट्रेडिशन के लिए भी, वो मलेशिया में थे। नहीं, देखिए, इंडिया की डिमांड्स तो पाकिस्तान में बहुत सारे और आतंकी है जिनको लेकर के भी रही है, जिनका पाकिस्तान गवर्नमेंट का डायरेक्ट उनका इन्फ्लुएंस है, राइट। जब उनको लेके पाकिस्तान की सरकार ने कुछ नहीं करा तो जाकिर नाइक को लेके हम क्या एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान से, वन। एंड सेकेंडली, यस, वी अंडरस्टैंड, पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको जो भी मौका मिले भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने का, या तो दुनिया भर में या अपने देश के अंदर ही वो स्प्रेड करता है। और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वो अपने देश में इसलिए स्प्रेड करता है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को, जो उनकी अपने फेलियर्स हैं और अपने जो चैलेंजेस इंटरनल हैं, इकोनॉमी के हैं। आतंक का चैलेंज भी बहुत बड़ा है पाकिस्तान में, नो डाउट, बट इकोनॉमी का है, बहुत सारे और चैलेंजेस हैं, उनसे अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान ये कदम उठाता है। तो यस, अंडरस्टैंडेबल है, इन चीजों को हमें इग्नोर भी कर देना चाहिए। क्वेश्चन है कि अब हमारे मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ में जो हमारे रिलेशन है और जो अब फिलहाल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया की पॉलिसी मेल नहीं खाती, दोनों ही एट द मोमेंट टोटली टेंशन में हैं। और शहबाज शरीफ कई स्टेटमेंट बना चुके हैं, कश्मीर का मुद्दा भी उठा चुके हैं लेटली। और अब जो हम शंघाई कोऑपरेशन में जो मीटिंग होगी, अब ये देखना पड़ेगा कि भारत किस किस चीजों में डिस्कस करता है, क्या क्या बातें होती हैं। क्या ऑन द साइड पाकिस्तान के लीडर्स ये प्रपोजल डालेंगे कि वो इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं, क्या ये ऐसी कोई चीज होगी, ये तो देखने से पता चलेगा। पर फिलहाल ये एक अच्छा मैसेज है कि इंडिया और पाकिस्तान के, अगर इंडिया पाकिस्तान में जाकर एक इंटरनेशनल मीटिंग को अटेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि अब चीज रेप्रोचमा की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, जिसको कहते हैं कि सूझबूझ के साथ में काम और डायलॉग के साथ में काम होता नजर आ रहा है। इससे टेंशन कम होगी और कुछ न कुछ मुद्दा जरूर उठेगा, चाहे टेररिज्म के ऊपर वहां पे डिस्कशन हो, चाहे वहां पे अभी मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उस क्राइसिस पे डिस्कशन होगी, क्या है। अब उधर बात हो, मीडिया के साथ बातचीत करने के अंदर ये भी पता चलेगा, निकलेगा कि पाकिस्तान का रवैया क्या है मिडिल ईस्ट की तरफ। ये जो हो रहा है बिटवीन इजराइल एंड ईरान के साथ क्या हो रहा है, और ईरान के साथ में भी जो बेसिकली टेंशन हो गई थी बॉर्डर के ऊपर, अब पाकिस्तान को शायद मौका मिलेगा कि ये सुझाव दे और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए कि ईरान के साथ में उसकी बातचीत ठीक हो जाए। क्योंकि ईरान जो बॉर्डर पे दोनों के जो तालिबान एलिमेंट और जो एक साइड में इनके एलिमेंट है, एक साइड में उनके एलिमेंट हैं, और बलूचिस्तान में कई टारगेट्स पे हमला हो चुका है और ईरानी भी नाखुश हैं, पाकिस्तानी के बलोच भी नाखुश हैं, चाइनीज जो वहां बैठे हैं। तो चाइना भी इस मीटिंग को बड़े ध्यान से देखेगा कि क्या डेवलपमेंट होती है, और इंडिया का स्टैंड बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का स्टेटस और प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटस अब इतना हाई हो गया है कि सबकी नजरें उन पे जाती हैं। उनकी नजरों पाकिस्तान, इंडिया के लीडर इसलिए सबकी नजर में रहते हैं कि सब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कोई पीसफुल नेगोशिएशन की बात करें, रेप्रोचमा की बात करेंगे। इंडिया की छवि ऐसी है कि सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे पहल अगर कोई उठाएगा इस दायरे के अंदर, ह्यूमैनिटी के दायरे के अंदर, तो इंडिया उठाएगा। तो ये भी एक्सपेक्ट होगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से। तो ओवरऑल तो अब देखने को पता चलेगा, बट ये एक काफी मील का पत्थर है जो आप न्यूज लेके आए हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं। तो अपने आप में मेरे ख्याल से ये एक अच्छी खबर है।